Students, we have studied useful microorganisms like lactobacilli, yeast. Now we discuss about the harmful microorganisms, the organisms which are harmful for the human and other animals, or the microorganisms which causes diseases. So such microorganisms are called as the harmful microorganisms. Now first we discuss about the fungi. Sometimes during the rainy season we notice the growth of fungus on the leather article or cotton material, and due to this that material become damaged. We know that spores of fungus are present in air, and during the favorable condition or if there is a sufficient moisture in the air, that spores germinate, and after germination that the fungal hyphae penetrate inside the material. Fungal hyphae means filament of the fungus that grows inside the material, and why they grow inside the material? For getting nutrition and also to reproduce. So due to the growth of fungus, or they get inside the material, there is a wearing of that material, and also material get damaged. So these materials cannot be last longer. They are not durable. So that fungi are the heterotrophic microorganism. Gunny bags, leather items like shoe, purses, belts, on which fungi have grown, do not last long. यानी जिस पे फंगस ग्रो होते हैं, और जनरली ये जो फंगस है वो किस पर ग्रो होते हैं? गनी बैग्स है या लेदर है, लेदर के आइटम है जैसे पर्स, शूज, बेल्ट्स, तो इसके ऊपर ये क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। उसके जो फिलामेंट है, फंगल हाइफी है, वो उस मटेरियल में अंदर तक घुसते हैं और अंदर तक जाते हैं। उसके कारण क्या होता है? तो वो जो मटेरियल है वो डैमेज होने लगता है, या उसका जो टेक्सचर है वो क्या होने लगता है? धीरे धीरे यानी खराब होने लगता है, और उसके कारण वो जो आइटम्स है वो क्या हो जाते हैं? जल्दी खराब हो जाते हैं। वुडन आइटम्स ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड, और बहुत बार फंगस ग्रो ऑन वुडन आइटम्स ऑल्सो, एंड द वुडन आइटम्स गेट स्पॉइल्ड. Various species of fungi grow on food items like pickles, murabba, jam, sauces and chutney. We have noticed that there is a growth of fungus on the pickle or murabba. Black powder is formed, or there is a white color disc floating on the surface of the pickle, jam or murabba. When the lid of that water is kept open for a long time, means that spores are formed on the surface of the pickle, jam and murabba, and then they germinate, and in this way they form a growth over it. So if they use nutrients in these food items for growth and reproduction. तो ये जो फंगस है जो किसके ऊपर ग्रो होते हैं? जाम पे या मुरब्बा या चटनी पे, तो वो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं उस फूड में से, किसके लिए? फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. और उसके बाद में ये फंगस क्या करते हैं? दे रिलीजेस माइकोटॉक्सिन. माइको मीन्स फंगस एंड टॉक्सिन मीन्स पॉइजनस केमिकल. So that mycotoxin, these are the certain poisonous chemical into the food, and thus food become poisonous. और उसके कारण वो जो food है वो क्या होता है? Poisonous होता है. Hence the food on which fungi have grown cannot be eaten. यानी जिस पर फंगस ग्रो होते हैं, या बहुत बार अचार पे या मुरब्बा है या चटनी है उसके ऊपर ग्रोथ होने के बाद हम क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं. हम उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या ग्रो हो सकते हैं? There is a growth of fungus and they produce mycotoxin, which is poisonous for us. After that we discuss about the Clostridium. बहुत बार क्या होता है? हम पेपर में भी पढ़ते हैं या न्यूज देखते हैं, उसमें बहुत इस प्रोग्राम में या कुछ कम्युनिटी फीस्ट है, उसमें क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होता है. तो ये फूड पॉइजनिंग अचानक से कैसे होता है? तो सम बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम आर ग्रो ऑन द कुक फूड, यानी जो कुक फूड है इसके ऊपर ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? ग्रो होते हैं, और उसके कारण क्या होता है? फिर दे प्रोड्यूस पॉइजन एंड फूड पॉइजनिंग.
बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया ये रॉड शेप है, सो दे आर कॉल्ड एज द बैक्टीरिया। रॉड शेप एंड प्रोड्यूस बैसिलाई, उसे हम क्या कहते हैं, बैसिलाई कहते हैं। दे प्रोड्यूस बॉटल शेप एंडोस्पर्म इन एडवर्स कंडीशन, यानी एडवर्स कंडीशन में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंडोस्पर्म। आउट ऑफ 100 स्पीसीज ऑफ दिस बैक्टीरिया, few are living in the soil and some are living in the alimentary canal of human and other animals. So they cannot withstand the normal oxygen level of the air because they grow in anaerobic condition. ये जो क्लोस्ट्रीडियम है ये क्या है, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एनारोबिक यानी दे ग्रो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो नॉर्मल हमारी जो ऑक्सीजन की लेवल रहती है उसमें ये विस्टैंड नहीं कर पाते, विस्टैंड नहीं कर पाते यानी सर्वाइव नहीं होते, यानी ये एयर में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। नाउ अनदर एग्जांपल्स ऑफ दिस क्लोस्ट्रीडियम आर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एंड क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाई। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लोस्ट्रीडियम एंड दिस क्लोस्ट्रीडियम ग्रो on the cooked food and they produce poison. So sometimes there may be a causes of, means there may be a chances of food poison. If such a food is consumed by someone, then उसे उस व्यक्ति को क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। अब उसके बाद में जैसे क्लोस्ट्रीडियम में क्या है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगी इज ऑल्सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक दैट अदर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिसीजेस, जैसे वायरसेस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन है। तो ये सब बैक्टीरिया या वायरसेस या प्रोटोजोन ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस डिसीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे HIV वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस डिसीजेस। लाइक जैसे HIV वायरस क्या करता है, एड्स कॉज करता है। हेपेटाइटिस जो वायरस रहता है ABCDE, तो ये क्या करते हैं, इट कॉजेज हेपेटाइटिस। या रेबीज वायरस, ये जो रेबीज वायरस है ये किस में रहता है, सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रैब्डो वायरस। तो ये जो वायरसेस है ये क्या कर सकते हैं, दे कैन प्रोड्यूस द डिसीजेस। जैसे प्रोटोजोन, मलेरिया जो प्रोटोजोन है, मलेरिया होने के लिए जो प्रोटोजोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम। तो ये जो प्लाज्मोडियम, ये जो प्रोटोजोन है ये किस में रहता है, saliva of the female anopheles. So these are the various types of microorganisms, ringworm, dandruff या scabies, ऐसे जो स्किन डिसीजेस है। तो ये सब डिसीजेस किसके थ्रू होते हैं, थ्रू द ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन द स्किन। So these are the various types of microorganisms which causes diseases or variety of infection. So these are called as the harmful microorganisms.